Sure. Take the next heading, better. Least count. What do you mean by a least count? Least count is nothing but better. The minimum measurement that can be taken from any instrument is called as of a least count. जैसा अपन स्कूल डेज में स्केल यूज करते थे बेटा, स्केल के अंदर ऐसा रीडिंग्स हुआ करते थे 1 2 3 4 5, ये 5, then 1 2 3 4 5, this is your 10, 1 2 3 4 5, this is your 15, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ करता था, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, isn't it? तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होता था, right now this one was right now for me 1 small units basically, isn't it? तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा measurement was 5 centimeter, then 5 centimeter, then 5 centimeter. So the least count of the instrument which can be measured, the minimum measurement which an instrument can measure is called as of your least count. Then the minimum measurement, the minimum measurement that can be taken from an instrument, is called its least count, is called its least count. ठीक है बेटा? वर्नियर स्केल में देखो बेटा क्या होता है, we are having two scales. The first one is right now for me vernier scale. वर्नियर स्केल, इसके अंदर अपने पास टू स्केल्स होते हैं बेसिकली. वन स्केल इज कॉल्ड एज ऑफ योर मेन स्केल रीडिंग. This one is one scale which is called as of your main scale. Okay, इसके ऊपर एक रीडिंग होती है बेसिकली, मान के चलो रफली यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, then again 1 2 3 4 5, then again 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. So this will be 0 to 10 ऐसा. ठीक है, इस स्केल को अपन क्या बोल रहे हैं, मेन स्केल बोल रहे हैं. इसके नीचे भी एक स्केल रहेगा बेटा, ऐसा कुछ बेसिकली मान के चलो somewhat like this. And the reading of this one is right now देखो 0 of the, इस स्केल को जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल. This one is called as of your vernier scale which is movable, इसके अगर मैं रीडिंग्स देखूं बेसिकली तो यहाँ पर देखो इसका 0, ये हो गया 0 पर, फिर यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5. ठीक है ना? सो ये हो गया 10. सो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका देखो बेटा, कभी भी ट्राई टू रिमेंबर लीस्ट काउंट याद रखो बेटा फॉर्मूला. लीस्ट काउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन MSD minus 1 vernier scale division. Clear बेटा? Least count will be equal to how much for me? 1 main scale division minus of your 1 scale division. और 1 main scale division कितना होता है बेटा? 1 MSD is always equals to for this scale 1 mm. ठीक है? 1 MSD is equals to how much for me? 1 mm. तो यहाँ पर देखिए राइट नाउ बेटा, ये जो मेन स्केल के रीडिंग है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, isn't it? So this is your main scale reading
एंड 0 से लेके 10 तक जो नीचे वाला लिखा दैट आर वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 0 से लेके 10 तक 10th रीडिंग इज बीन कोइंसाइडिंग विथ योर 9th रीडिंग ऑफ योर मेन स्केल, isn't it? So I can say here right now 10 vernier scale divisions, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो 10 vernier scale divisions is balancing with your 9 main scale divisions। दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, देखो this 10th one is been balancing with this, ये वाला कितना है 9th। Then 10 vernier scale division is balancing your 9 main scale division। VSD is known as vernier scale division, MSD is known as of your main scale division। So एक vernier scale कितना हो जाएगा बेटा, 1 VSD will be equal to 9/10 into your MSD, ठीक है ना। So that is equals to your 9/10 into 1 MSD कितना होता है बेटा, 1 mm होता है, यहाँ पर लिखा है देखो मैंने 1 MSD is equals to 1 mm minimum scale reading of your main scale division। So this will come out for me how much बेटा, 9/10 mm, यानी ये हो गया 0.9 mm। तो 1 vernier scale division is equals to 1 vernier scale division is equals to 0.9 mm। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो दिस इज योर लीस्ट काउंट डिवीजन का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट किसकी हो गई बेटा, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बताइए। दिस विल बिकम फॉर मी लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 mm 0.1 mm 1 mm minus 0.9 mm, यानी दिस विल कम आउट फॉर मी 0.1 mm। For vernier scale, the least count is for me or 0.9 mm। Clear? Is it clear बेटा? Least count निकालने का तरीका आ गया for vernier scale। Least count is equal to your 1 mean scale division minus 1 vernier scale division। ठीक है, मैं थोड़ा और आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए। Try to understand this one। मान के चलो if 1 main scale division is equals to x mm, 1 mm का जो होता है ना that can be anything, isn't it? 1 main scale division is equals to मान के चलो सम x mm है, and I'm saying that n vernier scale divisions is coinciding with n plus 1 main scale division, 1 plus n plus 1, और मान के चलो n minus 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंड करता है बेसिकली। हम लोग अभी क्या लिए थे ऊपर, माइनस ही लिए थे ना, कंप्लीटली कंडीशन हो रहा है, तो प्लस हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, सो n minus 1 main scale division। Then if 1 MSD is equals to x mm and the n vernier scale is been coinciding with your n minus 1 main scale division, तब when nothing is kept in between, when nothing is being kept in between the jaws, यानी 0 of the main scale division is coinciding with the 0 of the vernier scale division, ऐसे वाली situation, 0 of the main scale division coinciding with the 0 of your vernier scale, दोनों अगर 0 coincide कर रहे हैं basically right now, then in that situation 1 MSD of is equals to x mm and n vernier scale division is coinciding with your n minus of your 1 main scale division। और इसका लिस्ट काउंट निकालना है मुझे, चलो निकाल के बताइए, कोई निकाल सकता है क्या? Find least count। So try करिए, 1 MSD is equals to x mm and n vernier scale division is coinciding with n minus 1 MSD when nothing is been kept between the jaws, find the least count। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, n vernier scale divisions NVSD is been coinciding with your n minus 1 main scale division, ठीक है ना। मेन स्केल डिवीजन कितना है बेटा मेरे पास, x mm है, so this value will become for me n minus 1 into this will become for me x mm। Done।
So n vernier scale divisions is equals to n minus 1 into your x mm. तो 1 vernier scale division कितना हो गया बेटा? 1 VSD will be equal to n minus 1 divided by n into your x mm. कैसे लिख सकता हूं मैं? तो आप लीस्ट काउंट निकाल लीजिए. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू what is the formula for the least count beta? 1 MSD minus 1 VSD. ठीक है ना? 1 MSD कितना है बेटा? x mm होगा माइनस 1 VSD कितना आया? n minus 1 divided by n into your x mm. आ गया? So that will be equal to your how much for this one? X common ले लो. So this will be equal to 1 minus, this will be equal to n minus 1 divided by n. And this will be equal to your x mm. आ गया? तो कितना बनेगा बना? कितना बनेगा बताइए? ये वैल्यू कितनी बनेगी? x x by n. x by n mm. आ गया? Am I clear with this one? Yes, sir. Isn't it? लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मीन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. कभी भी डिपेंड करता है कि मेन स्केल डिवीजन आपको क्या दे रखा है. इट मे बी एन एक्स. यहाँ पर एक्स कैन बी एनीथिंग इन योर एग्जामिनेशन बेटा. 10 12 5 6 एनीथिंग डिपेंड करता है बेसिकली. ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीडिंग निकालने का तरीका. सर वो नेगेटिव आता ना सर, नेगेटिव x बाई n. कौन सा? Yes, ये sir. लास्ट क्वेश्चन. ये ब्रैकेट में है ना बेटा. दिस इज माइनस. आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट ना यहाँ पर. Sir, but I'm getting minus x by n. दिस इज योर प्लस. हाँ, the least count will be equal to how much for me, right? ये कितना आ रहा? 1 minus of n minus 1 divided by n. वन माइनस n minus 1 कितना है बेटा? 1 by n ही है ना. Done. This value is 1 by n into your x. Got it? ओके सर, राइट. x बाई n. यस है कि नहीं? यस. माइनस इंटू माइनस प्लस. हाँ. ओके सर. नेक्स्ट वन देखो बेटा. रीडिंग निकालने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग का कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट. रीडिंग निकालने का तरीका इन द वर्नियर स्केल. रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो वरना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. मान के चलो ये मेरे पास मेन स्केल है आराम से, और ये हो गया इसका 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 10. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So this one is right now for me main scale. Okay, and least count for the main scale कितना होता है बेटा? मैंने अभी बताया. For the least count for the main scale is always 0.1 mm. ठीक है. अब इसके नीचे जो है ना वर्नियर स्केल है. वर्नियर स्केल देखो बेटा, ये 10 है ना, ये 11 और 12 के बीच में यहां पर है. जरा ध्यान से. ठीक है? इज दैट क्लियर? Is that clear?
ये जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज योर वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल इज इन बिटवीन. ये हो गया मेरे पास 11 और ये हो गया मेरे पास 12. 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में अपना वर्नियर स्केल रीडिंग है, विच इज राइट नाउ फॉर मी 0. देन इट इज राइट नाउ फॉर मी 1 2 3 4 sorry 4 5 and 6. 1 2, this one is 3 4 5 and 6. Then this one is the sixth one, which is exactly coinciding with this one. तो अब रीडिंग निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था. रीडिंग निकालने का तरीका कितना होता है बेटा? रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू मेन स्केल के रीडिंग. कितना रीड कर रही है बेटा मेन स्केल? बताइए. वर्नियर स्केल से पहले जो रीडिंग है ना, जो दिखाई दे रहा है आपने, दैट वो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 11 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी ये जो ब्लू वाला कोइंसाइड कर रहा है, सिक्स्थ वन इज कोइंसाइडिंग विद सम वैल्यू ऑन द मेन स्केल. तो जो कोइंसाइड हो रहा है ना, उस वैल्यू को लिख लेना, दैट इज 6 into least count. This will be equal to 0.1 mm. आया सभी को ये लिखने का तरीका? Is it clear for everyone? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? रीडिंग लिखने का तरीका, मेन स्केल रीडिंग कहां पर है बेटा? 11 पे है. और ये 6 मतलब क्या बेटा? वर्नियर स्केल का जो रीडिंग जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है ना, वो वाला रीडिंग लिख रहा हूं. तो 6 इज बीन कोइंसाइडिंग, तो इट इज 6 into your least count. आ गया? So this will be equal to how much for me? 11 mm into 6.01 यानी 0.6. तो ये कितना बन गया? 11.6 mm. This will be the reading. Is that clear? Yes, sir. Am I clear with this one? Reading लिखने का तरीका आ गया सभी को? Any doubt in this one? Reading is always equals to main scale reading plus vernier scale reading multiplied with your least count. ठीक है ना? चलिए. Yes, sir. Now next one is something very important. मैं इसलिए इसको इतना टाइम ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि 3 questions damn sure in this chapter है. अब ऐसा मत समझो कि सर 2 दिन 3 दिन एक ही चिल्ली टॉपिक के लिए लगा रहे हैं. मैं इसलिए लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 मार्क्स यानी 12 मार्क्स बाय डिफॉल्ट आपके हाथ में होना चाहिए. अब देखो, मैं आज एक ग्रैंड टेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले जैसे ही मेरे को ग्रैंड टेस्ट मिलेगा, कोई भी एग्जाम, कोई भी इंस्टीट्यूशन का क्यों ना हो, विल फर्स्ट ट्राई टू सर्च फॉर द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट. यानी 3 क्वेश्चन पहले किसी हाल में भी पेपर के करके आना ही आना है. Isn't it? यानी we'll be doing 30 questions. That means 30 into 30 questions. यानी 3, एक क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने. यानी 30 क्वेश्चन पेपर्स में अपने को 90 बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे. यही मॉडल्स अगर हम लोग रिपीटेडली करते रहे ना मॉडल्स को, तो अपने 12 मार्क्स किधर नहीं गए, बाय डिफॉल्ट अपने को 12 मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसके बाद जीरो एरर. यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वर्नियर कैलिपर्स के अंदर. अब इसको देखो, पहले जो स्केल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज फॉर मी व्हाट टाइप ऑफ स्केल? मेन स्केल. मेन स्केल की रीडिंग हो गई है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 go on like this. ठीक है ना? दिस वन इज योर मेन स्केल डिवीजन. अब इसके नीचे जो रीडिंग होती है बेसिकली जो स्केल होता है ऐसा, ये हो गया 1, isn't it? So this one is say for example of your 2, this one is 3, this one is 4, this one is 5, this one is 6 and this one is 7. Seventh one is exactly coinciding with this one. देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, this one is right now for me 7th one. This 7th one is been exactly coinciding with this value. Coincide हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Isn't it? And least count of this one, ये जो ग्रीन से ड्रॉ किया है, this one is for me वर्नियर स्केल डिवीजन. बेटा पूरा स्केल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं. तो इसके लिए जो लीस्ट काउंट होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज फॉर मी 0.1 mm. Isn't it? तो अब जीरो एरर लिखने का तरीका देखो बेटा, इसका जीरो एरर इज इक्वल्स टू, एक ग्रीन लाइन से पहले क्या है अपने पास? ग्रीन लाइन से पहले मेन स्केल का कितना रीडिंग है?
कोई बताएगा? 0.1 ग्रीन से पहले वर्नियर मेन स्केल का रीडिंग कितना आपको दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर जो दिखाई दे रहा आपने, तो वो लिख रहा हूं मैं पहले 0 प्लस जो कोइंसाइड हो रहा है, जो कोइंसाइड हो रहा है, यानी वर्नियर 7. स्केल का कोइंसाइड कितना हो रहा है? 7 इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज नथिंग बट 0.1, यानी ये बन गया 0 एरर 0.7 mm आ गया। Yes, sir. Am I clear with this one? This is the zero error. This is the zero error. बात समझ में आई? Any doubt to anyone? ये कैसे लिखा है मैंने? रीडिंग का फॉर्मूला यूज किया है बेटा यहाँ पर। रीडिंग Yes, sir. मतलब जीरो एरर। रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड विथ योर लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है यहाँ पर? 0। देखो आप लोग ग्रीन लाइन से पहले कितना रीड कर रहा है? 0 रीड कर रहा है। देन वर्नियर स्केल कितना कोइंसाइड कर रहा है? जो भी कोइंसाइड कर रहा है ना वो वैल्यू लिख रहे हैं। वर्नियर स्केल की 7. रीडिंग कोइंसाइड कर रही है 7 into 0.1, so it will be 0.7 mm. Am I clear with this one? यस सर वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट वन आप लोग बताइए एक बार। केस नंबर 2, आराम से, टेंशन मत लेना। केस नंबर 2 फिर से सेम कंडीशन वही ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ जो ऊपर हम लोग स्केल ड्रॉ करेंगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट टाइप ऑफ स्केल? मेन स्केल डिवीजन। And scale. सेम रीडिंग अगेन 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अब देखो बेटा यहां पर दिस इज द वर्नियर स्केल 0 डन। ठीक है ना? सो दिस हो गया मेरे पास राइट नाउ फॉर मी फॉर द गिवन रीडिंग इफ आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। This one is 8. See, 8th one is been coinciding with this one. Am I clear? This one is your Yes, sir. vernier scale division. Vernier scale division. This one is your main scale division. इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 0.1 mm. अब इसका जो जीरो एरर लिखेंगे अपन, इसका जो जीरो एरर लिखेंगे, आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ, जीरो एरर 0.8 sir. यानी 0.8. देखो जीरो एरर इज इक्वल्स टू, जरा मैं आराम से लिखता हूँ, या माइनस दिख रहा है आप लोग को। रेड लाइट से पहले, रेड जो लाइट है मेरे पास, सॉरी मान के चलो रेड का जो लाइन दे रखा है मैंने यहाँ पर, ए वाला, दिस वन इज ऑफ योर 0, isn't it? तो मुझे जीरो एरर लिखना है यहाँ पर, आई एम राइटिंग विद दिस वन, जीरो एरर इज इक्वल्स टू, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है ये बताइए? मेन स्केल की रीडिंग 0 से पहले क्या आएगा? मेन स्केल की, मेन स्केल की रीडिंग 0 से पहले क्या आ जाएगा? -1 ही होगा ना? यस सर Yes. 0 से पहले क्या होता है स्केल के अंदर? -1 ही होता है। तो मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू -1 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना कोइंसाइड कर रहा है? 8 कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो बताओ इसकी जीरो एरर कितनी आई? -1 mm प्लस 8 इंटू 0.1 mm, ये भी mm ही आ गया ना? -1 mm प्लस 0.88 इंटू 0.1, तो कितना बना? हो 7 कर दे। -1 में से 0.8, 0.2. -1 में से 0.8 निकाल रहे हैं, यानी -0.2 mm। आई बात समझ में? Yes, sir. बात समझ में? I'm using this formula only for this one also. Reading is always equals to, zero error is equals to main scale reading plus vernier scale reading multiplied with your least count. This one is reading is equals to MSR plus your VSR multiplied with LC. ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ।
अगर वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल के लेफ्ट पे होगा तो जीरो एरर आप सबट्रैक्ट करोगे, अगर वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट पे होगा आप जीरो एरर को ऐड करोगे। बात क्लियर है? यस सर। मेकिंग ए नोट फॉर यू दिस वन, एक नोट लिख लीजिए आप लोग, सीधा नोट। जीरो एरर जो लिखा है मैंने, जीरो एरर इज always subtracted from the reading, subtracted from the reading, यानी zero correction will be equal to how much beta? Zero correction will be equal to how much for me? Zero error is always subtracted from the reading beta। बात समझ में आई? यस सर, क्लियर। रीडिंग विल बी इक्वल टू, जो भी रीडिंग आएगी ना उस रीडिंग के लिए माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर, ठीक है ना? यानी फर्स्ट वाले के अंदर अगर आप ऐड कर रहे हो, यानी वर्नियर स्केल टुवर्ड्स राइट है तो केस वन, अगर केस टू की अगर यहां लिख रहे हैं तो माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। केस वन जाएगा, केस टू के लिए प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? +0.2। जीरो एरर इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग, रीडिंग में से कभी भी माइनस जीरो एरर लिख रहे हैं, इजंट इट? अगर मैं ये केस वन के लिए लिख रहा हूं, केस वन के लिए आप आंसर बोलो क्या लिखेंगे? आर रीडिंग, जो भी रीडिंग आ रहा, रीडिंग माइनस 0.7 mm। केस टू के लिए, केस टू के लिए जो भी रीडिंग आएगी आर माइनस, दिस इज माइनस ऑफ 0.2 mm लिखोगे, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर आर प्लस 0.2 mm, दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आई? Am I clear with this one? Yes sir। चलिए, वेरी गुड। So this was about your vernier scale calipers का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? जीरो एरर इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग, रीडिंग में से अपने को कभी भी जीरो एरर निकालना है। तो जीरो एरर निकालने का तरीका मैंने बोला यहाँ पर, अगर वर्नियर स्केल टुवर्ड्स राइट होगा तो आपका जीरो एरर पॉजिटिव होगा, यानी रीडिंग में वो सबट्रैक्ट होगा। केस नंबर 2 में अगर वर्नियर स्केल टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो जीरो एरर आपको नेगेटिव आ रहा है, यानी रीडिंग के अंदर वो ऐड होगा। क्लियर? Am I clear with this? Yes sir। Very good। Next one. Next one is your screw gauge. Next one is your screw gauge, और एक नाम क्या है इसका? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो अपन याद रखते हैं दैट इज अबाउट योर पिच। जैसे क्रिकेट में डिस्टेंस बिटवीन विकेट एंड दी बैट्समैन होता है, दो विकेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। पिच यहाँ पर डेफिनेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड along the main scale, along the main scale in one complete rotation, in one complete rotation of circular scale, in circular scale। Okay, normally pitch is equals to one main scale division, ठीक है ना? तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका इसके अंदर देखो बेटा, लीस्ट काउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन योर सर्कुलर स्केल, ठीक है? इज इट क्लियर? इसका रफ डायग्राम देखो क्या होता है। अपने पास स्क्रू गेज में एक मेन स्केल होता है बेटा ऐसा,
और इस Sir. मेन स्केल को अपने पास एक सर्कुलर पार्ट होता है ऐसा, ठीक है ना, और यहाँ पर रीडिंग होते हैं इस तरह से मेन स्केल, और इसके रीडिंग्स यहाँ पर कहीं पर होते हैं इस तरह से। इसकी रीडिंग मान के चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। ये वो कहलाता है अपना मेन स्केल रीडिंग्स, MSR। और इस पे जो रीडिंग रहेंगे यहाँ पर हो गया एक रीडिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 गो ऑन, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सर्कुलर पाथ रोटेट करते हैं ना, जैसा जैसा घड़ी का सर्कुलर पाथ होता है फॉर चेंजिंग द टाइम, वो वाला। सो दिस वन इज योर वन मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर 1 mm फॉर दिस वन। और ये जो है ना सर्कुलर स्केल है, दिस वन इज योर सर्कुलर स्केल represented by CS, circular scale is represented by CS। और इसके ऊपर जो डिविजन्स होते हैं बेटा, इधर ये 100 डिवीजन का बनता है या 50 डिविजन्स का बनता है, 100 डिविजन्स का बनता है और 50 डिविजन्स का बनता है। ये प्रॉब्लम में देगा कि ये वेदर इसके पास 100 है या 50 है, ठीक है ना। सो जनरली अपन 100 डिविजन लेके चलते हैं बेसिकली। Is that clear for me? These are the two main parts you need to remember for doing the numericals. One is the main scale, another is the circular scale. Circular scale के ऊपर जनरली कितने डिविजन्स होते हैं बेटा? 100 डिविजन्स होते हैं या 50 डिविजन्स होते हैं। एक बार ये सर्कुलर पाथ पूरा फिराने का मतलब 100 डिविजन्स मतलब पूरा 100 डिविजन्स फिराने के बाद ये जो सर्कुलर पाथ है ना 1 mm स्केल के सामने जाएगा, ऐसा सामने ऐसा या ऐसा जो मूव करेगा ना 1 mm, वो पूरा कितने बार 100 डिविजन, यानी एक रोटेशन पूरा फिराना है, पूरा एक रोटेशन। देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मेन स्केल ऑन इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 100 डिविजन्स, पूरा 100 डिविजन्स जब आप फिरा रहे हो, दैट इज गोइंग फॉर मी हाउ मच फॉर मी 1 mm ऑन द मेन स्केल। इज इट क्लियर? So pitch is nothing but distance traveled along the main scale in one complete rotation of circular scale. Normally the pitch will be equal to your main scale division. तो लीस्ट काउंट क्या हो गया बेटा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन योर सर्कुलर स्केल। तो अभी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स है, यानी 1 डिवीजन मतलब 100, 1 सर्कुलर रोटेशन मतलब 100 डिविजन्स। एक सर्कुलर रोटेशन जैसे ही फिरा तो ये 1 mm सामने या पीछे जाएगा। बात समझ में आ रही है बेसिकली? तो अब इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका देखिए बेटा, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। बेटा पिच वैल्यू क्या है मेरे पास बताइए कोई? पिच इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? पिच 1 mm. 1 mm. 1 mm डिवाइडेड बाय मेन स्केल का कितना है 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स एंड सर्कुलर स्केल्स कितने हैं मेरे पास 100। मतलब ये लीस्ट काउंट इसका कितना आ गया बेटा 0.01 mm, यानी लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 mm। आई होप यू गॉट राइट नाउ, ये क्लैरिटी आ गई सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? चलिए, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस वन? चलिए वेरी गुड। अब देखो इसका Most of the time, इसका रीडिंग निकालने का तरीका, रीडिंग इज अगेन इक्वल टू क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग multiplied with your least count, that will give me the reading. Reading is equals to your main scale reading plus circular scale reading multiplied with your least scale, ठीक है ना? देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये हो गया मेरे पास मेन स्केल और ये हो गया सर्कुलर स्केल, रफली देख रहा हूं, ये हो गया मेन स्केल डिवीजन ऐसा कुछ, और इसके रीडिंग्स हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ रीडिंग्स है इसके ऊपर, ठीक है ना? और इसके ऊपर जो रीडिंग्स है यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग्स है, मान के चलो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ 1 2 3 4 5, ये मान के चलो 27 है, ठीक है ना? दैट इज योर 27। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 mm and 1 main scale division will be equal to 1 mm। तो अब इसकी रीडिंग कितनी बनी बताइए? अब इसकी रीडिंग कितनी बनी? यहाँ पर देखो बेटा, दिस इज योर 0, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 0 से, दिस इज योर 5, दिस इज योर 10 एंड दिस वन इज योर 10, इसके बाद 15
15 के बाद मान के चलो और एक दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पर, एक मान के चलो 12, इसमें जो आपको कोइंसाइड हो रहा है सामने, यानी ये कोइंसाइड होने से पहले दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी 16th वन, ये वाला जो है ना 16 है। यानी अब यहाँ पर जब आप रीडिंग लिखोगे, रीडिंग विल बी इक्वल टू, मेन स्केल के कितने रीडिंग दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा? 16 दिखाई दे रहे, यानी 16 mm प्लस सर्कुलर स्केल के कितने डिविजन कोइंसाइड हो रहा है बेटा? 27 mm इज कोइंसाइडिंग, लीस्ट काउंट विल बी 0.01 mm। क्लियर? दैट विल गिव मी द आंसर। कैलकुलेशन आप लोग कर लो, बात समझ में आ रही है? और एक बार बताओ Sir, हाँ बेटा। sir, it is not always no, sir. मतलब that least count for vernier is 0.1 and this screw gauge is 0.01 mm. It is more accurate ना, सर्कुलर स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट इज 0.01, वर्नियर स्केल में जब हम लोग ले रहे थे दैट वाज हाउ मच फॉर मी 0.1, तो व्हिच इज मोर एक्यूरेट टू गिव मी, स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट ना, 0.01 तक रीड कर सकते हो आप बेसिकली। Sir, if it is not given exam, we have to take. इसका लीस्ट काउंट यहाँ पर निकाला, देखो मैंने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग स्क्रू गेज में क्या बोल रहे हैं? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, जितने ज्यादा सर्कुलर डिविजन्स रहेंगे उतना ज्यादा अपने को लीस्ट काउंट आएगा। 100 पे एक आएगा, 50 पे एक आएगा, 25 पे एक आएगा, तो डिपेंड करता है सर्कुलर स्केल पे आपने कितने डिविजन्स लिया बेसिकली। Got it? आया? Yes, sir. If it is not given in exam, we have to take 0.01 mm only, no, sir. हाँ 0.01 mm ही लेना चाहिए। चलो इसका आंसर बताइए एक बार मेरे को। ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया सर्कुलर स्केल और ये हो गया मेन स्केल की रीडिंग। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इज राइट नाउ फॉर मी 0 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 और इसकी रीडिंग यहाँ पर मान के चलो 25 है। 25 इज बीन कोइंसाइडिंग, ये तो कहीं दो जो लाइन है ना, इन दोनों की लाइन, ये ब्लू वाली और ये ग्रीन वाली लाइन कोइंसाइड हो रही है 25 पे, यानी 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बीन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। यानी इसकी रीडिंग कितना लिखोगे बेटा? रीडिंग कितना ही दिखाई दे रहा है कोइंसाइड होने से पहले? 6 and 7, so this will be equal to 7 mm plus this will be 25 into least count will be 0.01 mm। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सालिया आया? रीडिंग लिखने का तरीका, जब ये दो कोइंसाइड हो रहे हैं, देखो बेटा ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला जब कोइंसाइड हो रहे हैं, तो जब मुझे ये दिखाई दिया कि 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, तो मेन स्केल जब एक इससे कोइंसाइड कर रहा है तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी अपने को सामने दिखाई दे रही है ना, वो वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 5 6 and 7, so 7 is the main scale division plus 25 circular scale division into least count। क्लियर? Yes, sir. बात क्लियर है सभी को? चलो अब इसका जीरो एरर लिखते हैं, इसका जीरो एरर, इसका जीरो एरर। फिर से वही कहानी जैसा आपने वर्नियर कैलिपर्स में किया था, तो मान के चलो ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल की रीडिंग। क्लियर बेटा? डन? यस सर। अगर मान के चलो इसका जो रीडिंग है और इसका जो रीडिंग है जब कोइंसाइड हो रहा है, तो मान के चलो ये सम 68 है और ये इसका 0 है। 0 किसका? मेन स्केल का। मेन स्केल का 0 इज बीन कोइंसाइडिंग विद 68 ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी इसका जीरो एरर कितना हो जाएगा बेटा? जीरो एरर विल बी इक्वल टू रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 68 मल्टीप्लाइड विद 0.01 mm, यानी दिस विल कम आउट फॉर मी 0.68 mm। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। No error, no, sir. जीरो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग जीरो लिख रहे हैं। अगर आप बोलते सर मुझे जीरो नहीं दिखाई दिया, तो जब आप क्या लेना है, जैसे वर्नियर कैलिपर में कर रहे थे उसी तरह से करना है। मान के चलो ये सर्कुलर स्केल है इस तरह से, एंड यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल, इसका ये मेन स्केल, ठीक है ना? तो अब ये देखो यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ दिस इज मान के चलो सम 25 और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल मीन्स 0 is hidden,
0 is not visible, मतलब अंदर चले गया है कि नहीं? 0 आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो जब आप 0 एरर कैसे लिखोगे? 0 एरर विल बी इक्वल टू, 0 से पहले क्या रहता है बेटा स्केल में? Yes, -1 mm minus प्लस सर्कुलर स्केल कितना है 25 इंटू रीडिंग 0.01 mm। आई बात समझ में? Yes, sir. तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दिस विल कम आउट फॉर मी -0.75 mm, दिस विल बी द जीरो एरर। क्लियर है? इज इट क्लियर? फिर इसमें भी सेम कहानी, नोट जीरो एरर इज, जीरो एरर इज ऑलवेज क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्टेड, ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 1 केस नंबर 2 की रीडिंग बताइए जीरो एरर के साथ। नंबर 1 रीडिंग माइनस जीरो एरर। reading minus 0.68. हाँ, तो केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए ये हो गया रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर केस 1 के लिए कितना था बेटा? 0.68. तो इट इज 0.68 minus 0.68 mm. This will be the answer. Second case, case number 2 के लिए Reading plus 0.75. 0.75 mm, यानी this will be reading plus 0.75 mm. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Am I clear with this one? yes, sir. Yes, sir. Clear. Very good. So I hope that screw gauge and vernier scale concepts are much clear for you right now. जीरो एरर निकालने का वैसे भी रिकॉर्डिंग में भी है, अगर आप लोगों को पर्सनली चाहिए तो आई कैन सेंड इट फॉर यू, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मैं अपलोड तो नहीं कर सकता अभी, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। फर्स्ट 1-2 सेक्शंस मैंने इसलिए भेजा क्योंकि थोड़े बच्चे लेट ज्वाइनिंग किए थे, उसलिए मैंने अपलोड कर दिया। तो आपको पर्सनली चाहिए तो आई कैन स्टोर इट एंड सेंड यू, वो भी टाइम लगेगा मुझे, बट प्लीज ट्राई टू राइट। ये नोट्स तो मैं आप लोगों को वैसे भी भेज दूंगा, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू डू द न्यूमेरिकल्स। Am I clear with this one? Yes, sir. चलो, अरे तो हो गया ना, सभी को आ गया? चलो, अब देखो ग्रैंड टेस्ट पेपर 1 करने का तरीका। चाहे कोई सा भी पेपर लो बेटा, पहले अपन क्या करेंगे? अब तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया अपना, एरर्स हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, और फ्रॉम 20, 22 एंड 23 वी आर गेटिंग एवरी टाइम 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन। तब मेरे पास क्वेश्चन पेपर सामने है, तो द मोमेंट आई गेट द क्वेश्चन पेपर आई विल बी सर्चिंग फॉर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड एज वेल एज ऑफ योर व्हाट डू यू कॉल दैट वन, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, सेकंड वन भी सेमीकंडक्टर का है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम योर न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस वन इज योर एसएचएम। तो अभी अपन नहीं किया तो आई एम नॉट टचिंग इट, हम लोग लास्ट में टच करेंगे। उसके बाद दिस वन इज योर रे ऑप्टिक्स, देन सिक्स्थ वन इज आल्सो योर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, देन सेवेंथ वन इज योर रोटेशनल मैकेनिक्स, दिस वन इज फ्रॉम योर रोटेशनल मैकेनिक्स प्लस सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, this one is your friction and this one is your elasticity, bulk modulus वगैरह है, then this one is your fluid mechanics, this one is your thermal expansion heat, so this one is also your thermal expansions and this one is also thermal expansions, ये भी नहीं करे अपन, and this one is from your waves, I'm not writing now, 16th one भी नहीं होगा, 17th one नहीं होगा, 18th one, हाँ 18th one भी नहीं होगा, 19th one भी नहीं होगा, 20 भी नहीं किए, 21 भी नहीं किए अपन, 22, 23, 24, 25, then 26, 27, 28, 29, 30, 31, देखो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 is units and dimension। चलो एक मिनट में सभी लोग आंसर बताना मुझे, make it fast, let me see how many of you will give me the answer। चलिए बताइए।
In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of a physical quantity A, B, C, and D are 2%, 1%, 3%, 2%, respectively. Then the maximum percentage error in the calculation of the Z, where Z is equals to A square, B to the power of 1 by 2, C to the power of minus 1 by 2, D to the power of 1 by 4 is. Sir, 6.5. 6.5. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड आ रहा सभी को 23 स्टूडेंट्स है सभी लोग आंसर दे दिए रहना चार्ट बॉक्स में अब तक यानी अपना 4 मार्क पक्का ठीक है तो आंसर लिख दो यहाँ पर आप लोग को करने की जरूरत नहीं है ना मुझे करो करिए सर छोटा ही क्वेश्चन है बेटा वो सिंपल क्वेश्चन है अभी मत पूछो सर ऐसे ही आते क्या तो लास्ट ईयर तो ऐसे वाले ही क्वेश्चंस दिए वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन द सेम आज जेई मेंस का भी क्वेश्चन पेपर हुआ तो वी आर गेटिंग सेम टाइप ऑफ ए क्वेश्चंस बहुत सिली और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा z by z इज इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा 2 into 2 प्लस दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इसका 1 into इसका एरर है राइट नाउ फॉर मी हाफ isn't it then this one is of your plus 3 into this one is equals to half plus 2 into 1 by 4 आ गया सो कर लीजिए आंसर आ जाएगा तो कितना देख रहे हो बेटा 2 into 2 this one is 4 plus this one is right now for me 1 by 2 plus this one is right now 3 by 2 plus this one is nothing but 2 ones are 2 twos are ये हो गया 2 डन 15 by 2. आ गया 6.5%. चलो 32 बताइए बेटा taking into account of the Second significance option. the value of 99.99 kg plus 3.3 kg will be equal to your how much in view of the significant figure no mistake make sure of that one please Second option, sir. मेरे को मत पूछो आप कॉन्फिडेंट होना बेटा मेरे को पूछ सकते टाइम चले जाएगा आप होते तो आंसर क्या लिखते ये बताओ सर 31 क्वेश्चन में c इक्वल्स c टू द पावर ऑफ -1 by 2 है सर c to the power of -1 by 2 है माइनस नहीं लिखा मैंने हाँ नहीं लिखे सर दिस इज योर हाँ कर लो अभी ये है ये b है ये c है तो ये माइनस होगा यहाँ पर -1 by 2 होगा ठीक है हाँ ठीक है सर चलिए नेक्स्ट वाला taking into account the significant figures the value of 99.99 plus 3.3 दोनों सेम यूनिट्स में तो 99.99 plus 3.33 सॉरी ये अगर मैं कर रहा हूं आई एम गेटिंग दिस वन एज 103.29 आएगा so this is 2 bit 9 is right now greater than 5 so the preceding number will be increased by 1 तो ये कितना बन जाएगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख रहा हूं तो 103.3 so what is my best option I can write here right now second option Second option. क्लियर चलिए देन उसके बाद ये वाला प्रेशर गैसेस स्टेट का है 34 एलआर सर्किट है देन सेमीकंडक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट देन पोजीशन फिर कहां गया ये तो साउंड का क्वेश्चन है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ये मैकेनिक्स है वाटर एंटर्स ये फ्लूइड मैकेनिक्स है 2 मोल्स दैट इज एन आइसोथर्मल फॉलोइंग ग्राफ करंट वर्क डन यहाँ पर भी नहीं है then this is an X double slit experiment का question है then photoelectric effect of function then magnetic this one is right now for moving charges का question this one is right now for me gravitation का question then this is your coefficient of friction work for energy collision का concept का application 49, sir. 49 आ जाएगा 3 questions बन रहे हैं तो 49 देखिए if time t energy e and acceleration c are chosen as fundamental physical quantities ठीक है ना so dimensions of the mass is how much dimensions of the mass is how much चलो करिए सभी लोग Third option, sir. हाँ Third option.
50 मिनट वेट करोगे अगर रॉन्ग आया तो। ऑनलाइन पे वीडियो ऑन करके कौन आंसर दे रहे हैं? इस्माइल, इस्माइल ही दे रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, Sorry, sir. First option. हाँ। First option. देखो ऐसा करे तो इसी चाल होता है, जानबूझ के 4 मार्क्स फिर 1 नेगेटिव, बाजू वाले को सीट देके आना। Sir, fourth option. अब मैं यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेस करा बोल के बोले, नहीं बोले तो अब वो कर देते थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भागते थे, बाकी का टाइम फिर ऐसी ही होती हाल। अब ऐसा अपने को 3 क्वेश्चन अपने को 30 दिन कंटिन्यूअसली करना है, ऐसा नहीं कि आज ही है, कल भी फिर हम लोग एक ग्रैंड टेस्ट पेपर लेंगे, फिर उसमें भी 3 क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो सो डेट अपना मिनिमाइज क्या बोलते हो स्टेप करने मिनिमाइज हो जाए और फास्टनेस बढ़ जाए। सभी लोग Yes, आंसर sir. देना बेटा। आफिया, मन्नान, आमीना, आयशा। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग भी आंसर दे, अगर मुझे फास्ट पढ़ाना होता तो दंदन। First option, sir. Sir. ये कौन सा मेथड है, कैसा करोगे, आइडिया है? Sir, fourth option. देखो First option. देखिए क्वेश्चन नंबर 49 मैं कर रहा हूँ। देखिए उसने बोला मास इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है देखो यहाँ पर कहाँ गया है, द टाइम, एनर्जी एंड एक्सेलरेशन आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन ऑफ द मास, यानी मास इज राइट नाउ प्रोपोर्शनल टू, mass is proportional to time, mass is proportional to your E and mass is proportional to your, और ये क्या है, energy Acceleration. is proportional to acceleration, यानी mass का dimension is right now for me, I am writing here right now given condition, m is directly proportional to your T, m is directly proportional to energy, m is directly proportional to the charge। तो अगर इसका पावर्स ले रहा हूं मैं, दिस इज मान के चलो सम x y एंड z, ऐसा कुछ ले रहा हूं इसको, यानी इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, मास का डायमेंशन इज राइट नाउ फॉर मी m, इजंट इट? आ गया। द नेक्स्ट वन इज t, t क्या है यहाँ पर, टाइम Time. टू द पावर ऑफ u, ये हो गया x। एनर्जी का डायमेंशन बताइए कोई, ml ml स्क्वायर square t power minus. दिस विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ y। उसके बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशन l टेल टू द पावर ऑफ -2 होल स्क्वायर, यानी टू द पावर ऑफ u, और ये कितना हो गया z। आई बात समझ में सभी को, isn't it? तो ये हो गया मेरे पास m1, तो ऑल द डायमेंशंस ऑफ योर m आई एम राइटिंग हियर, m टू द पावर ऑफ y, t टू द पावर ऑफ, ये कितना बन जाएगा बेटा, x माइनस 2y, l और कितना है प्लस z, इतना ही ना, Sir, -2z. माइनस l Sir, स्क्वायर, x. टी के लिए लिख रहा हूँ ना, एल लिख लो, हाँ सॉरी एल लिख लेता हूँ, एम एल टी होगा ना, तो एल लिख ले रहा हूँ पहले, फाइन। सो दिस वन इज इक्वल एम, द नेक्स्ट वन इज एल, दिस वन इज एल स्क्वायर इज 2y एंड दिस वन इज इक्वल टू योर प्लस z। देन उसके बाद टी, टी इज योर x, टी इज माइनस ऑफ 2y एंड माइनस ऑफ 2 इंटू z, बताइए ना। Yes, sir. अब इसको इक्वेट कर लीजिए यहाँ पर, दिस इज m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0, isn't it? यानी y will be equal to 1, 2y plus z will be equal to how much for me? 0. The next one is right now for me x minus of your 2y minus of your 2z will also be equal to 0. ठीक है ना? This is equation number 1, equation number 2, equation number 3 for all the students who are doing it right now. तो सेकंड इक्वेशन में से z की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज प्लस z इज इक्वल्स टू 0, यानी z की वैल्यू कितनी आई बेटा, z की वैल्यू -2, so substitute this -2 in your equation number 3, so we'll get the value of your y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू आ गई 2 Value. और x की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वेशन 3 सेट कर लो ना, इक्वेशन 3 Is equals to -2. कितना, -2. -2, तो हो गई बात। तो आई कैन राइट हियर राइट नाउ दिस इज t टू द पावर ऑफ x, x की वैल्यू कितनी, -2, देन राइट नाउ फॉर मी
एनर्जी e to the power of y की वैल्यू कितनी है 1, then acceleration is z is equals to -2. This will be the answer. Sir, We go. sir, we can arrange मतलब the dimensions according to the options, no, sir. हाँ, I can do that one also बेटा, क्योंकि अब यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि they need it in detail, इसीलिए मैंने किया हुआ है। अभी जैसे No, सब sir. ना लेकिन So we want only mass, no, sir. We can eliminate the option by saying मतलब we want only mass. हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. ठीक है, चल तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। टेल मी व्हाट अदर चैप्टर यू कैन डू द क्वेश्चंस। वेव ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, Semiconductor. सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। सेमीकंडक्टर्स लॉजिक गेट्स में आपको पूरा कराऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। अभी सभी लोग करेंगे तो मुश्किल होगा ये, क्योंकि लॉजिक गेट्स को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो ही समझ में आएगा आपको। अब ये वाला तो थियरी क्वेश्चन ही है, सिलिकॉन डायोड इज डूप्ड विद फास्फोरस देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये तो आप थियरी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। ये पेपर में आज आप लोगों को स्टेयर करता हूँ, आप जितना हो सका उतना एक बार करो, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और हर पेपर में मैं सिर्फ वही, कल भी फिर मैं एक पेपर लाऊंगा, आई विल बी डूइंग अगेन इन द एंडिंग द यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस, और जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना उस चैप्टर, यानी अभी कल से मैं आई विल बी स्टार्टिंग विद योर कंप्लीट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। Yes, sir. Friday and Saturday, these two I will be starting with your heat and thermodynamics. First I will complete with thermal expansions, KTG, heat transfer, then thermodynamics. 2 या 3 दिन के अंदर I will fastly complete the heat and thermodynamics and I will complete the full stop. क्योंकि उसके बाद हम लोग को एवरी मॉडल पेपर में हम लोग को 4 से 5 क्वेश्चन अपने को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में लगेंगे, यानी एवरी टाइम इन द नीट के एग्जामिनेशन में वी विल बी राइट नाउ रेडी विद 5 + 3 क्वेश्चंस। 5 + 3 After completing that, will 8, no, sir. क्या बोले? After completing मतलब thermal expansion and KTG will be मतलब we will be preparing for 8 questions, no, sir. I am not getting you बेटा। Sir, after completing that thermal expansion and the thermodynamics, we were मतलब prepare. We have been prepared for that मतलब in for 8 questions. हाँ, तो एवरी टाइम हर ग्रैंड टेस्ट में हम लोग ये 8 क्वेश्चंस पक्का करके आते रहे ना, समझ में आ रहा है। तो आज तो मैंने फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट पेपर आपको दे दिया, जैसे ही मेरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा तो कल भी मैं ये ग्रैंड टेस्ट जब दूंगा ना, तो पहले ये 3 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस करेंगे। अगर थर्मल एक्सपेंशन का मान के चलो अपने पास हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन हो गया, देन विल ट्राई टू सर्च फॉर हीट ट्रांसफर ऑफ ए क्वेश्चन, देन विल ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 अगेन। Yes, sir. समझ में आ रही है? Every time we'll go with first paper, second paper, third. जब third paper पे आएंगे तो we'll do all the questions in the second paper, the topic which we have completed again in the first paper. ऐसा हम लोग पूरे चैप्टर्स, पूरे ग्रैंड टेस्ट के पेपर्स में से जो भी चैप्टर्स अपन कर रहे हैं ना, तो ये 20 क्वेश्चन है, 20 चैप्टर्स अपन जो कर रहे हैं बेसिकली, दिस 20 मार्क्स का जो वेटेज का टॉपिक पहले करेंगे ना, तो ये अपन कम से कम 30 बार करते रहेंगे एवरी टाइम इन 30 पेपर्स। इसके अलावा भी मैं आपको, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आई विल गिव यू 1 ग्रैंड टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशंस एट योर होम, सो दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू गेट अ टाइम, यू कैन डू इट आउट। अब मैं खाली पेपर देते रहूंगा, आप लोग करोगे नहीं, सॉल्यूशन के साथ दिया भी तो आप लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि कॉलेज का भी वर्कलोड रहेगा, कॉलेज का भी कंडीशंस रहेंगे। सो आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू। तो जितना मेरे से आराम से हो सकता है मेरे साथ बैठो, एक बार प्रैक्टिस हो जाता है, बैठे बैठे 1.5-2 घंटे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, एक साथ रिविजन भी हो जाएगा और एक साथ आप डेली ग्रैंड टेस्ट पेपर देखने का चांस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। Yes, sir. ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? देखिए 4th वन आप लोग ने अगर SHM पढ़ा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 springs in the parallel combination, 2 springs in the parallel। जेई मींस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ट्राई कर सकते हो, कोई आंसर दे सकता है? देखो इसका जो लोग सेकंड ऑप्शन है, 4th वन का सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन। के इफेक्टिव कितना बन गया बेटा इसका, कोई बताएगा? दिस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू हाउ मच? K1 plus K2. यानी K1 is K plus K, तो ये हो गया मेरे पास 2K। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T is equals to 2 pi under root of your M by K effective, यानी this will be equal to 2 pi under root of M by 2K. So what is the answer for second option? आपको सब क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9th वन ट्राई करिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग इवन इंटरमीडिएट में लॉन्ग आंसर भी पढ़े होंगे 1 से 2 बार।
Very famous chapter for concept. If the tension in the string is changed by 1%, the change in the transverse wave velocity is velocity का formula याद है? V is equals to under root of T by mu. T Mu by is mu. linear mass density, यानी V is directly proportional to root T. एरर में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा V by V into your 100 is equals to half into delta T by T into 100. लेसर देन 1% के लिए ऐसा वाला एरर लगा सकते हो, वरना आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर लो, दैट विल गिव मी द परसेंटेज. ठीक है ना? दिस इज लेसर देन 5%. लेसर देन 5% के लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का कांसेप्ट लगा सकते हो बेसिकली. तो डेल्टा V by V into 100 is equals to half into delta T by T into your 100. कितना आ रहा आंसर बताइए? 0.5. 0.1 यानी 0.5%. So what is the answer? First option. First option. 0.5. 0.5. Very good. आ गया? चलिए. Yes, sir. 13th one ट्राई करिए बेटा सभी लोग एक बार. I'll give you 1 minute of your time. वो होना चाहिए कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. A surveyor uses a steel tape measuring 50 meters long at a temperature of 20 degrees Celsius. What is the length of the tape when the temperature is 35 degrees Celsius? Coefficient of volume expansion of the tape material is 3.6 into 10 to the power of minus 5 Kelvin inverse. Linear expansion है टेप के लिए, तो डेल्टा एल निकाल लीजिए. अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इनटू योर डेल्टा थीटा, यानी एक्सपेंशन इन द टाइप विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू एल इनटू योर डेल्टा टी. क्या अल्फा की वैल्यू दे रखा है आपने को प्रॉब्लम में? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन अल्फा नहीं दिया. वी नो द रिलेशन बिटवीन देम, याद है आप लोग को? अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा. कितना होता है बेटा? 1 is to 2 is to isn't it? Yes, sir. So alpha will be equal to how much for me? 3.6 into 10 to the power of minus 5 divided by कितना हो जाएगा? 3. यानी Yes. 1.2 into 10 to the power of minus 5 Kelvin inverse. तो वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए. So this will be equal to 1.2 into 10 to the power of minus 5 into initial length कितना है बेटा? Measuring 50 meters. So it is into 50 into temperature difference. Temperature difference कितना है बताइए बेटा? Initial कितना है right now? 30. Finally 35 minus 20. 15. 15. तो ये अपने को एक्सपेंशन आ जाएगा. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर से एक्सपेंशन आ जाएगा. पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम में? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप व्हेन इट इज बीन एट अ टेंपरेचर ऑफ 37, यानी फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस एक्सपेंशन. जो एक्सपेंशन आया उस एक्सपेंशन को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा. अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर Sir, सकते हैं. second option. आई डोंट नो, यू नीड टू चेक विद द ऑप्शंस फर्स्ट. आ रहा है? Yes, sir. चलो वेरी. ग्रेविटेशन में भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा. ये वाला देखो 23rd. If the gravitational potential on the surface of the earth is V naught, then its value at the center will be equal to how much? Very famous formula याद होना चाहिए आप लोग को. Third Gravitation option, sir. at the center will be equal to how much बेटा? Minus of 3 by 2 times of the capital G capital M divided by R. Gravitation potential on the center on the surface कितना होता है बेटा? Always constant. कितना? Minus GM divided by R. So Yes. potential at the center will be equal to how much for me? 3 by 2 times of V naught. Then third option आ गया. Yes, sir. Question number 24 ट्राई करिए एक बार. When 10 to the power of 19 electrons are removed from a neutral plate, then the charge which will appear on the plate is equals to. Very good question बेटा. Simple question but logical question. ज्यादा कुछ भी नहीं है. One word answering में निकाल सकते हो आप आराम से. Sign convention is important. Fourth option. आया? Fourth.
When 10 to the power of 19 electrons are removed from a neutral plate, then the charge that will appear on the plate is charge will be equal to n into charge of electron. Sir, 1.6. Of Second 19 option. into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Minus 19 plus 19 चले गया, so we'll be getting plus 1.6. 1.6. The electrons are removed. Electrons are removed मतलब charge on the plate will be positive. That means the answer will be second one. Clear है? Yes, sir. रे ऑप्टिक्स मैंने रिसेंटली किया था, एमएस के बच्चे अगर रहेंगे तो आप लोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देख लीजिए बेटा। रे ऑप्टिक्स रिसेंटली आप लोग का हो चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड इज बीइंग फिल्ड इनसाइड ए पॉन्ड इज 5/3. लाइट सोर्स इज बीइंग प्लेस्ड इन द वाटर एट a depth of 6 meters. Minimum radius of the disc placed on the water surface so that the light of the source can be stopped is will be equal to how much? ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने क्लास में डायरेक्टली। R is equals to your h divided by under root of your mu square minus 1. याद है? याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन रिवीजन करते उसे टाइम पे करेंगे। डोंट टेक दैट एक्शन रिलेटेड टू दैट वन। 4.5 आंसर। फॉर्मूला तो ये होगा r is equals h divided by under root of your mu square minus of 1. h दे रखा है प्रॉब्लम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है प्रॉब्लम में। h की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 मीटर से। मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 5/3। सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर? Yes, sir. Sir, हाँ बेटा। 38 questions or 38th question also, sir. Dimensionless. क्वेश्चन नंबर 30 dimensionless. The magnetic susceptibility has an unit. Magnetic susceptibility कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन? Represent a magnetic susceptibility. Size है, Yes, sir. isn't it? So it is a ratio. It is a dimensionless quantity. Very direct question है भी। 29 देखो बेटा। 29 देखो। Magnetic field exists in the space B is equals to B1 I cap plus B2 J cap. Then the plane through which the magnetic flux will be zero will be equal to how much? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। B डॉट ये होता है, P dot A. that is equals to BA into your cos theta. Magnetic flux will be zero through which plane? अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, Yes, sir. है ना? X and Y, Y and Z, X and Z, all the planes will have the All. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में बेटा? I और J, isn't it? So this will be your X and this will be your Y, isn't it? अगर XY plane में है angle, then theta 90 degrees. The magnetic flux will be zero through which plane बेटा? X and Y plane. Very good question बेटा। again simple question है लेकिन अच्छा वाला question। Clear? Sir, if it would be B1I plus B2J plus B3Y, then it will be all. तो थ्री डायमेंशन में आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि फ्लक्स तो अपने को क्या है? BA into cos theta. इन्हीं टू प्लेन्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइक से मान के चलो X है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना Z से परपेंडिकुलर होना चाहिए। Yes, sir. Okay, sir. So then it will be the any two perpendicular और उसका resultant must be perpendicular to third one. Then only it will become Fermi. Okay, sir. 37 ट्राई कर सकते हो क्या? देखो आप लोग फॉर्मूला बेस्ड है। The position of a particle is given by r and its linear momentum is given by p. The angular momentum about the origin vectors अगर आपको याद है तो आप लोग कर सकते हो उसको। L bar is equals to your r bar cross p bar, isn't it? So this will be equal to your I, J, K.
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग तो वेक्टर्स को n नंबर ऑफ टाइम पढ़े होंगे आप लोग। Sir will do. ये हो गया 2, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99% चांसेस आर that you will be doing wrong this question. The angular momentum about the origin is perpendicular to बोला, ये पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट है। इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? एंगुलर मोमेंटम पहले निकालो आप, पहले आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, कितना आ रहा आंसर इसका बताइए मुझे पहले, सिंप्लीफाई करके बताइए। आई कैप विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 4 + 4, आई कैप को क्लोज करें, 4 माइनस ऑफ माइनस, ये हो गया plus 3j cap plus then it is 0 2 cap. + 2, then plus this is k cap, this will be 4 - 4. That means your answer will be equal to your 8 I cap minus 4 j cap. This is your answer. And this is in which plane beta? XY plane. XY plane will be perpendicular to what? This is perpendicular to Z axis. Any second option will be the answer. Yes, sir. Clear है? क्योंकि अपने को आंसर I और J कैप में आया बेटा. That means it is lying in the XY plane. उसने क्या बोला? This angular momentum about the origin is perpendicular to which plane? XY का perpendicular क्या होता है? Z axis ही होता है ना. So that is the reason I am getting the answer in Z axis. Am I clear? Don't bother बेटा, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि रफली आप लोगों को कुछ आइडिया है। Otherwise the students who have been not studied, don't take the tension. अपन वही क्वेश्चंस परफेक्टली प्रैक्टिस करेंगे जहां पर मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया हुआ है कि 80 मार्क्स हम लोग इसी हाल में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम लोग ने 3 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लिए, कल से हम लोग डेली 3 क्वेश्चंस के ग्रैंड टेस्ट में करते रहेंगे, फॉलोड बाय द टॉपिक व्हिच आई एम स्टार्टिंग। कल से हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, तो अनदर 5 क्वेश्चंस, अनदर 3 or 4 days, यानी बिफोर 10th of this month विल बी ट्राइंग टू सी दैट हीट और थर्मोडायनामिक्स पूरा हो जाए और डेली उस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाए, ठीक है ना। एंड 20th of this month तक अपन इतना प्लान करेंगे कि विल एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट 20 क्वेश्चंस इन एवरी ग्रैंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है ना। So Yes. don't take tension. अगर आपको stress हो रहा है, if you're feeling that you are not getting much concentration or maybe getting low, please try to talk me, get motivated yourself, and don't try to get disappointed initially कि ऐसा नहीं हो रहा. If you can start right now, at least try to do the 20 questions in your grand test. That will help you out in a great way. Clear है? अब बाकी दूसरों को सोच के या इतना पेपर दे के आप डरिए मत, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिले तो अपन को क्वेश्चंस कैसा सेलेक्ट कर लेना है और कौन से क्वेश्चन अपन को करना है, जो अपन प्रैक्टिस करें वही क्वेश्चंस पहले अपन को करके आना, बाद में टाइम मिला तो बाकी के क्वेश्चंस। मैं रे ऑप्टिक्स भी पूरा करूंगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स भी पूरा करूंगा, उसके अनदर 4 क्वेश्चंस भी अपन परफेक्टली करेंगे आफ्टर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, देन विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मे बी फ्रॉम टुमारो द क्लास बेटा, maybe 12 o'clock या 11:45 या 11:50 द क्लास जाएगी, इट विल बी अप टू 12 o'clock। इनिशियली आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस होने के लिए मैंने 11:30 11:20 तक ही क्लोज कर रहा हूँ, बट मे बी नियर बाय फ्यूचर द क्लासेस मे बी एक्सटेंडिंग टिल 12 o'clock इन द नाइट। No problem, sir. Not at all. हाँ बेटा, Not at all problem, sir. चलिए ओके ओके। सर क्या सर एक बार वो हीट और थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला लिस्ट शेयर करो ना। कर दूंगा बेटा, आज मैं पढ़ा दे के आपको पूरा वो सेंड कर दूंगा। एक बार मैं आप लोग को फॉर्मूला लिस्ट की बुकलेट्स भी आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा आज। ओके सर। ओके चलो, एंड आई विल डू कंप्लीटली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बेटा इन डिटेल, सो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you.